अभी जो IIT मद्रास का आया है PhD इन मैनेजमेंट जी, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि CFTI ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूजी है जो डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो CFTI से होने चाहिए। जी। ऐसा कुछ कंपल्शन है या फिर सिर्फ उस पोस्टर में लगा हुआ है? क्योंकि मैं मतलब स्टेट कॉलेज फंडेड है हमारा। तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? नहीं, अगर आप CFTI जो कॉलेजेस देखिए ना, इसमें तो उसमें IITs NITs भी आती है और कुछ स्टेट कॉलेजेस भी आती है इसमें। तो अगर आप उस कॉलेजेस में आते हो तो आप अप्लाई कर दीजिए ना, अगर आप उन कॉलेजेस में आते हो CFTIs के। ओके सर, फिर तो नहीं हो पाएगा शायद, हमारा CFTI नहीं है। वैसे नॉर्मली अप्लाई कर दीजिए ना, अगर आप इसमें नहीं आता है तो आपका कॉलेज CFTI की और भी कॉलेज भी आती है, कुछ स्टेट जो स्टेट की और भी कॉलेज आती है, तो आप नॉन CFTI से अप्लाई कर दीजिए। उसमें शायद गेट स्कोर लगता है, CFTI में ना 8 CGPA के ऊपर लाते तो उसमें गेट स्कोर की जरूरत नहीं रहती है। ओके, मतलब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी, आपका गेट स्कोर 606 अभी बताया था। अच्छा, तो आप अप्लाई कर दीजिए, आपको PhD के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कॉल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ID देने वाला ना 4 जगह आपको बताया, आपको वहाँ पे फोकस कीजिए, वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ओके सर। हाँ। Hello sir, can you hear me? हाँ, यस बोलिए। Sir, can I talk in English? I am from South India. Yeah, it will be fine for me. Okay sir. Sir, my gauge score is 522. I am general category. My CGPA is 7.20. Can I get MTech from any NIT in data science or any other and industrial management subjects like that? Yeah, you will get it. See, if you see in MTech NIT Surathkal na, there are 2 ways to get admission. The first one is through CCMT, okay, like MTech, general MTech, and the second one is MTech research program. So if you are feeling through, if you are applying to MTech research, you have to give interview, okay. So even at 450 gate score, I know people with 450 gate score also they got MTech research in data science. So apply to MTech research data science, okay. Apply to MTech research in IIT Surathkal, okay. This is the first thing I will say. Sir, we have to apply separately for MTech research or through CCMT we have to apply? You have to apply separately. You have to apply to CCMT, to that college website. It might be in June or July now. You have to go to the NIT Surathkal website portal. You have to apply separately. You have to specify your name or your gate score and all the research area which you have, and then they will call you for interview. Might be the interview will take place online, and then after if you convert your interview, you will get the seat. This is one of the best option to get MTech in one of the all NIT. See, last year one boy with 460 now, he got MTech in thermal in NIT Durgapur. Then later he applied to MTech research in NIT Surathkal, and he got thermal engineering. And every package of opportunities are good. Okay. Sir, but I have no past experience in data science. Is it a problem? Will it? No, it will not create any problem. It will not create any problem. No issue for that. But suppose if you are applying, if you are planning to apply, what I will suggest in these 4 months, now you have only 3 to 4 months, you start preparing for linear algebra, you start clearing maths, linear algebra, probability, and all this stuff, and also one language. Give learn any one language like Python, so it will be better for you for interview, during interview also, and during the course also, because the competition is very good. It's very tough. Like if you are going into all IITs or all NITs now, you have to compete with BTech student. Okay. So the second option is IME Calicut, NIT Calicut, you know. So it is one of the good college. The package is okay, good 8 to 10 lakh package is there. At your gate, so you will get this opportunity. Okay, and then sir, in which subject from NIT Calicut? Industrial engineering management. Industrial engineering management. Okay, sir. Yeah. So you will get this college in round 2 or 3, second or third round. You will definitely get. Okay. Sir, currently I am a working professional. I have experience more than 2 years in shipbuilding sector. So will it help in any other master's programs from IITs? See, if you want to switch into data science profile, then I will suggest then you should take industrial engineering management. Like till Calicut is good, even other colleges also is there, but the placement there is not there, not good. So if you have suppose you have experience now, then and what is your CGPA? My CGPA is 7.2, sir. 7.20. Yes.
Okay, see, actually, I will suggest you should apply for IIT Madras MS program also. See, because you have experience now, so apply Sir, for can IIT Madras. can I apply in IIT Madras Ocean Engineering MS program? See, you will not get called, but you will not get called. The thing is Okay. that it is very difficult if you are planning to apply for this, like say building type. So in NIT Surat, there is branch of marine structure is there. You apply there, you will get called to employ research. See, many people are Okay. working to see building, or even NIT Calicut also. Offshore engineering is there, so you can apply there also. Okay. Sir, MTech research in NIT Surathkal is open right now. Its application is open. Can I apply right now? No. It will open in June. Now it will open in June or July. It's very late. Meaning after second or third CCMT round, then it will open. Okay. You apply for there are other options are there. Like if you want to go into data science profile, then the thing will be different. If you want to go into your own where the job where you are doing job, then the thing will be different. There are two different cases. Okay, sir. Other than NIT Surathkal, which is the option for data science, and another option? See, if you are comfortable to switch into other college, like one college is there, Chennai Mathematical Institute. If you know, so this is one of the best option. I am saying this to everyone. This is one of the best options you will get because the exam you have to give separate exam. Okay, first of all. So there is separate exam is there, and the fees is around 8 lakh fees is there of 2 years. Okay. If the average, if your average family income is 8 lakh, and if your average family income is below 8 lakh, then you have to pay 5 lakh rupees. But the outcome, you will get a package around 20 to 22 lakh package is there. So it is one of the best option to pursue MSc in data science. Okay, this is one option. The Chennai Mathematical College. Yeah, Chennai Mathematical Institute. Second one is ISI Kolkata. Again, there will be a separate exam will be there. QROR will be there. Okay. So can you repeat it? ISI Kolkata. ISI Kolkata. Yeah. There is one MTech program which are names QROR. QROR. Yeah, it is similar to IIT Bombay IOR. It's almost similar, not exactly, but it's almost similar, like 1920, like this way, in the same way. So the fees is very less fees is there. You will get stipend, and it's one of the most reputed college in India. The place is very good. 18-20 lakh package is there, so no worries about it. Sir, what is the competition in ISI Kolkata? Yeah, it is much greater because see, actually the fees is very less, and those who don't qualify they prefer this college. It is much more than Chennai Mathematical Institute. Sir, what is the syllabus for QRON and Chennai Institute? So the syllabus they have uploaded in for CMI now. So what the requirement is, you have to like 11-12 maths is there, programming language there, and aptitude is there. These are the syllabus. So you will get the on the website only, college website. Sir, Chennai Mathematical Institute, when will the application open for data science? See, there are 3 ways. Like you can pursue your MSc in computer science also, or data science or mathematics. Any branch you can prefer. You have to apply for that particular exam. You have to apply for that particular course, and you have to give exam. So the form will be April and only it will start, and the exam will be on the June, mid-June, or maybe at the June end will be there. Okay, this is the option. Or else you see if your gate score 522 now, or anyone who have the gate score below that, like around 522 below also, you can apply for IIT Guwahati. Some programs are there, like energy studies is there, or CRT is there, so Center of Rural Technology. The reason is, see, once you get into IIT now, the most of the software companies comes, so you can prepare for that course. See, in energy studies is linked to a mechanical only. Okay, so energy studies we can apply for MTech program. No, it's MS only, MSR, but the program is 2 years only, so there will be no difference. MTech, there is no MTech, there is only MS is there. Okay. IIT Guwahati energy studies, sir. Yes, energy studies. You will get called, and at the same ID you apply for CRT also, Center for Rural Technology. Okay. CRT. Okay, sir. Yeah. सर 819 स्कोर पे थैंक यू सर हेलो सर 819 स्कोर पे आईओआर में कहाँ चांसेस है 890 819
देखिए यहाँ पे IIR के लिए ऐसा है कि आप IIT जो एमटेक RA अप्लाई करना, आप इसको प्रेफरेंस देना, क्योंकि इसमें ज़्यादा चांस रहेंगे। और इसमें चांस कैसे रहेंगे ना, देखो अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ ना तो नहीं आएगा कॉल आना दिक्कत आ जाएगी। और अगर नहीं आता है ना, अगर मतलब एग्ज़ाम होता है इसका ना, IIR के लिए एग्ज़ाम होता है हमेशा। 19, 18, 17 में क्या होता था कि रिटर्न एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट गेट स्कोर की बेसिस पे हुआ तो बहुत दिक्कत रहेगा, 850 के नीचे जाएगा ही नहीं कट ऑफ अगर डायरेक्ट हुआ। कानपुर में देखो चांस रहेंगे आपको, IIME में बहुत अच्छा ब्रांच है कानपुर का, आपको वो भी 800 का आसपास ही रहता है, तो आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ पे अप्लाई करना, आप IIT बॉम्बे में अप्लाई करना है IIR का, इसमें RA भी अप्लाई करना, और IIT दिल्ली में अप्लाई कर देना, इसमें तो आपको वहाँ पे आ जाएगा। MSR के लिए अप्लाई करना और एमटेक दोनों के लिए अप्लाई करना। हेलो 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 हाँ जी बोलिए। सर, वो मेरा स्कोर 865 है। जी वो मुझे थर्मल और डिजाइन जैसे कोर्स में एमटेक करना था, जैसे बॉम्बे मद्रास में। तो उसके बाद मुझे R&D कंपनीज में काम करने का इंटरेस्ट था। तो इस बार तो प्लेसमेंट का कुछ ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आप अभी आपको एमटेक में लेना एडमिशन? हाँ, 865 है। अच्छा, तो मतलब थर्मल का उतना कुछ प्लेसमेंट रहता है क्या? मतलब इस बार सुना कम है के देखिए जो प्लेसमेंट अगर आप ओल्ड IITs का देखोगे ना, तो वहाँ पे जो प्लेसमेंट है 60-70% प्लेसमेंट रहता है थर्मल का, डिजाइन का, ऐसा रहता है। और एवरेज पैकेज आप देखोगे तो 8 से 10 लाख का ही रहेगा। अगर आप देखो ये वेबसाइट में अगर आप देखोगे हम लोग का जो इसमें सारे रिव्यूज है, IIT बॉम्बे का आपको दिखेगा थर्मल का 60-70% प्लेसमेंट है, R&D कंपनी आ जाती है इसमें। लेकिन जो लोग जो अगर आप देखो तो 20 लोग रहते हैं उसमें जो मैक्सिमम लोग प्रिपेयर करते हैं डेटा साइंस के लिए करते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट 100% नहीं है। जो पैकेज मिलता है वो भी 8 से 10-12 लाख का इसी रेंज में ही रहता है। इनफैक्ट IIT मद्रास में भी यही चीज है, वहाँ भी प्लेसमेंट पूरा नहीं है। और वहाँ पे कोई ब्रांच अप्लाइड मैकेनिक्स है, वहाँ भी पूरा प्लेसमेंट नहीं है वहाँ पे। तो मैन्युफैक्चरिंग का भी इतना ज्यादा प्लेस, देखिए सबसे अच्छा इसका डिजाइन का सबसे बेस्ट है, उसके बाद थर्मल आता है, ऑलमोस्ट डिजाइन थर्मल से है, और उसके थोड़ा नीचे मैन्युफैक्चरिंग का आता है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में प्लेसमेंट चाह रहे हो तो आपको इतना 8 से 10 लाख मिलेगा। हाँ, लेकिन आप ये देखिए IIT बॉम्बे में एक ब्रांच है मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी, MMM ब्रांच है, मॉडलिंग ऐसा नाम का ब्रांच है, वो अच्छा खासा ब्रांच है, वहाँ भी पैकेज 15-16 लाख का मिल जाता है आपको, वो एक अच्छा ब्रांच प्रीफर कर सकते हो। आप IIT बॉम्बे में भी अप्लाई करोगे ना तो ऐसा ब्रांच अप्लाई करना प्लेसमेंट ज्यादा हो, वो हिसाब से अप्लाई करना, अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो। अगर आपको R&D में काम करना है अप्लाई कीजिए इसमें कोर में, कोई नहीं आपको कंपनी आ जाती है, ऐसा नहीं है जीरो कंपनी, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट जीरो तो नहीं है। अनलाइक दूसरे जो सेकंड जनरेशन में तो प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ पे कंपनी आ ही जाएगी आपको। कोई ना कोई ऐसे अच्छी खासी कंपनी आ जाएगी, जैसे बता रहा आपको, यहाँ का बता रहा IIT मद्रास का बता रहा, यहाँ पे आपको मिल जाती है कोई भी सेक्टर में कंपनी आ जाती है, मर्चेंडीज आ जाती है। बंदे को मिला भी अप्लाइड मैकेनिक्स में, उसको मर्चेंडीज में R&D में जॉब लगी है, ऐसी कंपनी आ जाती है। तो आप डिजाइन अप्लाई करो, आपको यहाँ पे मद्रास में करिए, बॉम्बे में पहले प्रीफर करो, फिर मद्रास करो, दिल्ली करो, ऐसा। ओके, फिर इंटरव्यू और एग्जाम के लिए क्या प्रिपेयर करना पड़ता है उसके लिए, मतलब एडमिशन के लिए? देखिए ये डायरेक्ट एडमिशन होता है, एमटेक तो डायरेक्ट बेसिस पे होता है, गेट स्कोर के बेसिस पे। ओके, MS के लिए आपको इंटरव्यू रहता है, अगर आप MS के लिए अप्लाई करोगे तो आप एमटेक का अप्लाई करना, आपको एमटेक मिल जाएगा। MS मत अप्लाई करना, वो 3 साल का रहेगा, आपको इतना गेट स्कोर है, आपको एमटेक मिल जाएगा। ये एक और आप बोल रहे थे NIT के सूरतकल का जो एमटेक का सेपरेटली कॉलेज का अप्लाई करना, उसमें CGPA कट ऑफ कितना रहता है वो जानना चाहता था बस। देखिए वो CGPA तो मोस्टली जहाँ पे भी MS का रहता है ना तो 7.5 मिनिमम रहता है, और मोस्ट ऑफ द कॉलेज 8 प्रेफर करती है, 8 CGPA प्रेफर करती है। अगर आपका 7.5 है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए आप बहुत से लोग अप्लाई करेंगे तो लोग उसको करेंगे ना, इंटरव्यू कॉल के लिए लोग क्या देखेंगे कि आपका CGPA और आपका ये देखेंगे, आपका SOP भी देखते हैं, वहाँ पे SOP लिखना पड़ता है आपको रिसर्च करना पड़ता है। अगर आप एमटेक रिसर्च अप्लाई करोगे तो वो देखेंगे आपका, और आपका गेट का स्कोर देखेंगे। ये 3 फैक्टर को ऑन द बेस्ट ऑफ 3 फैक्टर आपको इंटरव्यू कॉल आती है, फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर सिलेक्शन होता है। और सीट काफी कम रहती है, ऐसा नहीं कि बहुत भरपूर सीट नहीं रहती है। अगर आप देखोगे CDS अदालत में 3 से 4 सीट रहती है, कोई भी ब्रांच है मैकेट्रॉनिक्स में, जितने एमटेक के ब्रांच है उसमें उतने ही एमटेक रिसर्च के ब्रांच है। तो ये एक साइड पे रहता है, आप वहाँ पे मैकेट्रॉनिक पढ़ सकते हो, मिल लो ब्रांच में, जिसको अप्लाई करना है, CDS पढ़ सकते हो, आपको थर्मल करना है। क्योंकि देखिए अभी वो बंदे का बताया लास्ट ईयर 450 में उसको NIT दुर्गापुर मिला था थर्मल में, उसी स्कोर में उसमें एमटेक रिसर्च मिल गया NIT सूरतकल में, एमटेक थर्मल में। अब यहाँ का पैकेज काफी अच्छा है।
लास्ट ईयर शायद 13-14 लाख का एवरेज पैकेज गया था, ऑलमोस्ट सब लोग प्लेस हो गए थे, एक दो बचे थे लास्ट में, तो वो भी इसमें पेंडेमिक टाइम पे। तो ये ऑल NITs का प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है, अगर जिसको मिल रहा है तो मतलब उसको प्रेफर करना चाहिए। इवन जिसको नॉन कोर में जाना है, ऐसा जो प्लान करके है कि नॉन कोर में ही जाना है, उसको ऐसा यहाँ पे कोई भी ओल्ड NITs में इंटरनेशनल ब्रांच नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है या प्रोसेस मेटलर्जी है, NIT सूरत कल का बता रहा, तो ये सब ब्रांच ले लेना चाहिए और नॉन कोर की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे एक डाउट आता है, एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप कभी भी ऐसा कर रहे हो ना, तो आपको जो आप MTech ले रहे हो, ये हो सकता है कि आप अगर आपको प्लेसमेंट मिल गया नॉन कोर में अच्छी बात है, लेकिन आप उस MTech की डिग्री में दूसरा कुछ नहीं कर पाओगे, दिक्कत आती है मार्केट में जॉब देखने के लिए। आप ऐसा MTech ले लिए जिससे कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, जैसे कि मटेरियल साइंस में क्या ना, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। अब जो लोग को पता रहेगा, मैं भी लैब में जॉब किया था मटेरियल साइंस में, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज काफी कम रहती है इंडिया में, बहुत ही लिमिटेड जॉब रहती है। अगर आप 10 लोग रहेंगे तो किसी भी एक लोग को जॉब लगेगी, ओल्ड IITs में 2-3 लोगों को लगेगी, बाकी मैक्सिमम लोग नॉन कोर में शिफ्ट हो जाते, और बाकी और जो मैक्सिमम परसेंटेज है, अगर कुछ नहीं मिलता तो PhD करने चले जाते। तो जब भी नॉन कोर में अप्लाई करोगे आप, या जब भी आप नॉन ऐसे इंटरनेशनल ब्रांच अप्लाई करोगे, तो पहले ब्रांच देखना, ऐसा वो ब्रांच मत लेना जो आपके मैकेनिकल से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, तो दिक्कत आपको आएगी, आपको उससे समझने में दिक्कत आएगी। और अब फिर आप नॉन कोर की तैयारी करोगे तो बहुत ज्यादा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसके लिए, ये बता रहा हूँ आपको। ओके Hello, sir. Hello, sir. Am I audible? Hello, sir. हाँ, बोलिए। Sir, like I am comfortable with English, sir. I am from South Yeah, India. okay, you are. Say. Like my grade score is 577, sir. 577, Like okay. I'm interested in energy engineering. So what is the best I can do to be? I mean, at the end of MTech, I am interested towards placement, sir. And your CGPA? And my CGPA is 8.8. And your category is? BTech mechanical, sir. No, category like a 577. General category. See, general category, na, see, at this grade score, you will get energy science at IIT Guwahati. Okay. I mean, Okay. he is having very good, decent placements, sir. See, the placement for that core branch is not there. If you are looking for placement in the energy sector, there is no good placement is there. Or maximum people they apply for either they go for PhD only, maximum go for PhD, or else they go for IT sector job. Maximum they prepare for this only when they are taking that branch. Even you can apply. See, and the second thing is you can apply for NIT Surat or NIT Calicut Energy Engineering branch, like NIT Calicut have Energy Engineering and Management. You can apply that also. Sir, it's not that like I'm only interested in energy, but like my first preference is energy. But if any other branch with this score, if I'm getting very good placement, then please suggest it, sir. See, 577, then you apply for MS. If you are willing to go for MS, I will suggest you apply for MS only, because you will get MS from IIT Madras. MS in which branch, sir? I mean, See, in IIT Madras, na, you will get for applied mechanics, you will get, or even for management studies also. In IIT Madras, na, there are management study department is there. Under there are various sections is there: operation, information technology, and finance, marketing. So you apply for operation and information technology, you will get very good placement, and you will get call also. The only thing is you have to give very strong SOP for management studies. okay, sir. हेलो Hello, Thank you, sir. हेलो hello. हाँ सर मेरा गेट स्कोर है 663 है, और एक्चुअली मेरा मतलब CGPA 8.16 है, एंड कैटेगरी इज OBC. सो मुझे एक्चुअली मतलब मैन्युफैक्चरिंग में और थर्मल में एक्चुअली मुझे ये चाहिए था एडमिशन. तो अभी मुझे मतलब क्या करना चाहिए और मुझे कहाँ कहाँ मतलब मिल सकता है चांसेस, ये जरा मतलब डिस्कस कीजिए ना प्लीज. आपका गेट स्कोर कितना है? 663. 663. 663. 663, ओके. ये हाँ देखिए, हाँ आप है ना यहाँ पे अगर आपको देखिए आपके स्कोर पे तो MSc मिलेगा आपको. अच्छा, IIT मद्रास में अप्लाई कर देना, वहाँ पे MS के लिए, यहाँ पे ऑपरेट जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट अप्लाई कर देना, आपको कॉल आ जाएगी. मैन्युफैक्चरिंग में प्रेफर कर देना, मैन्युफैक्चरिंग में आपको इंटरेस्ट है थर्मल में, वो अप्लाई कर देना. आप यहाँ पे अप्लाई कर देना, IIT इंदौर में अप्लाई कर देना, वहाँ पे आपको आ जाएगी. IIT जोधपुर अप्लाई कर देना.
सर मुझे मतलब ये मतलब COAP के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा या फिर मतलब उसको डायरेक्टली मैं वेबसाइट से अप्लाई करना पड़ेगा? MS के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा कॉलेज वेबसाइट से, अगर आप अच्छा। MTech अप्लाई कर रहे हो। लेकिन सारे देखो कुछ MTech कॉलेज IIT गांधी नगर है, उसका सेपरेट रहता है, अलग से रहता है। IIT भिलाई का भी अलग सेपरेट रहता है, कुछ IIT का सेपरेट MTech रहता है, वो खुद ही उनका इंटरव्यू भी होता है। जैसे IIT भिलाई का इंटरव्यू भी होता है एडमिशन, तो वहाँ पे आपको लोगों को मिल जाता है। ऐसा है। ओके जैसा भी ये मुझे भी अपने IT मतलब ये बॉम्बे में अगर मुझे ये मतलब अगर मुझे मतलब चाहिए रहेगा तो फिर मुझे अभी मतलब क्या ये चांसेस है कि मतलब कौन सा ब्रांच मुझे मतलब मिल सकता है IT बॉम्बे में? देखिए IIT बॉम्बे में आपको जो ये ब्रांच है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ब्रांच है सितारा का, वो मिल जाएगा आपको वहाँ पे। और ऐसे वो दूसरे ब्रांच में दिक्कत है मिलना, क्योंकि और भी बहुत से ब्रांच है, लेकिन वहाँ पे कॉल नहीं आएगी। मिनिमम 700 बायोमेडिकल अप्लाई कर देना, लेकिन वहाँ पे कॉल आ जाएगी। वहाँ पे तो इंटरव्यू होता है ना, इसके लिए वो कॉल आने के चांसेस रहेंगे। और बाकी ऐसे ब्रांच नहीं है। बाकी एरोस्पेस भी 730-40 लगता है, गेट स्कोर लगता है, ये तो मिनिमम बॉम्बे। तो मतलब कोई भी मतलब ये IT में अभी खिलाई का मतलब ओल्ड IT में मतलब मुझे मिल सकता है क्या, लाइक इन कोर डिपार्टमेंट लाइक? नहीं, कोर नहीं मिलेगा आपको। अगर ओल्ड IITs में आपको कोर MTech में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो 800 का अबव जाता है। ओके MS मिल सकता है आपको, अगर आपको MS में अप्लाई करना, वो भी बहुत दिक्कत है, वो भी उसमें भी मिलेगा नहीं। मैकेनिकल में तो आपको मिलेगा नहीं MS भी। IIT मद्रास में आपको कॉल आ जाएगी, 650 तक आती है, लोगों को मिल जाता है। 650 का अबव भी आपका है तो मिल जाएगा, वो भी आप अप्लाई कर देना। ठीक है। हेलो हेलो सर, मेरे को एक चीज पूछनी है कि गेट 2021 तो जैसे मेरा इतना अच्छा नहीं गया, अगर मैं 2022 में नीटी अगर मेरे को मिलता है तो नीटी में बायस करते हैं कि भाई 1 साल ड्रॉप हो गया आपका? नहीं, कुछ नहीं करते। अगर आप देखोगे IIT बॉम्बे में लोग 3-3 साल का ड्रॉप लेते हैं, 2-2 साल का ड्रॉप लेते जाते हैं, दिक्कत कुछ नहीं आती है। हाँ, लेकिन जस्टिफाई करना रहता है इतना साल के। देखो 1-2 साल का तो आज चलता ही है अभी, अब तो सबके पास ऐसा रहता है। मैक्सिमम लोगों के पास गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, DSC का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो सब रहता ही है ड्रॉप का। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, प्लेसमेंट के टाइम पे ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो 3 साल का कोई गैप हो रहा है तो कुछ कंपनी आपको एलिजिबल नहीं करती बैठने के लिए। वो लिखा रहता है कि 2 साल का गैप, जहाँ पे लिखा रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि 2 साल का गैप के ऊपर है तो मत बैठिए आप, बस ऐसा लिखा रहता है। बाकी ऐसे वो मैक्सिमम कंपनी बैठ सकते हैं, लेकिन कुछ कंपनी स्पेसिफाई कर देती है पहले से। बाकी ऐसा कोई प्लेसमेंट इसके लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। NIT में अप्लाई करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो हाँ सर, मुझे एक्चुअली ये भी मतलब डाउट था कि अगर मैं भी ये मतलब IT को छोड़ के अगर मैं NIT में अप्लाई करूँ तो मुझे और कौन सा मार्क्स मिल सकता है? 663 पे ही मैं मतलब बोल रहा था तो IIT में ना, आप IIT की बात कर रहे हो? नहीं मतलब समझिए कि अगर मुझे अब अच्छे कॉलेज में चाहिए, लाइक अगर ऑनलाइन ये NIT में चाहिए तो फिर मतलब मुझे मिल सकता है क्या, मतलब लाइक मैन्युफैक्चरिंग में और मतलब थर्मल में मैं अगर ओल्ड से करूँ तो? देखिए ये साल में आपको नहीं मिलेगा, आपकी जो इस करंट गेट स्कोर पे नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं अगले साल आपस से गेट दूं तो अगला बच्चा स्कोर आता तब मिलेगा, लेकिन इस गेट स्कोर पे आपको ऑल IITs में आपको ये नहीं मिलेगा। मद्रास में कॉल आ सकती है इंटरव्यू, लेकिन सिलेक्शन होना तो आपको इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। और अगर आपको सेकंड जनरेशन मिल जाएगा, आपको IIT इंदौर में कॉल आ जाएगी, मैकेनिकल आपको मिल जाएगा, और उसके बाद जो कि IIT पटना वगैरह वहाँ पे मिल जाएगा आपको, वहाँ पे दिक्कत नहीं। न्यू IIT से मिल जाएगा आपको, 4 नहीं बता रहा, 4 में आपको मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे अप्लाई करना है MTech रिसर्च में सूरतकल में, वहाँ पे अप्लाई कर देना, इंटरव्यू दे देना, इंटरव्यू बहुत बढ़िया दे देना, अब तो आपको कॉल आएगी। ओके मोस्टली इंटरव्यू मेन रहता है। अप्लाइड मैकेनिक में अप्लाई कर देना IIT मद्रास में, वहाँ पे कॉल आ जाएगी। ठीक है सर। सर ये मतलब अगर मैं मतलब न्यू IIT में तो फिर वहाँ पे मतलब चांसेस क्या क्या रहेगा कि मैं मुझे मतलब मुझे अच्छा मिल जाएगा? मतलब सपोज कीजिए ये कीजिए कि मैंने अभी मतलब न्यू IIT में अप्लाई किया तो वहाँ पे मतलब ये मतलब प्लेसमेंट का वहाँ पे चांसेस मतलब क्या मतलब कितना रहेगा प्लेसमेंट का चांसेस न्यू IIT में? हाँ, न्यू IIT में प्लेसमेंट चांसेस नहीं रहेंगे वहाँ पे। अब न्यू IIT में अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए आप IIT जम्मू वगैरह में अप्लाई कर रहे हो, जब IIT धारवाड़ में अप्लाई कर रहे हो, यहाँ प्लेसमेंट के चांसेस नहीं रहेंगे। जैसे जैसा मिलेगा ना आपको प्लेसमेंट का, तो आप वहाँ पे ये सोच के जाना। इनफैक्ट IIT इंदौर में भी दिक्कत है प्लेसमेंट में, मतलब जो भी सेकंड जनरेशन मैकेनिकल होता है बहुत कम प्लेसमेंट, 15% प्लेसमेंट है। अच्छा ठीक है सर जी, ठीक है, थैंक यू। हेलो सर, मेरा गेट 2020 स्कोर 445 है सर। मेरा बीटेक परसेंटेज 88% है। ओके
सर मैं मतलब बेस्ट थिंग क्या कर सकता हूँ अपने करियर में, तो मैं क्या चूज करूँ? 445 है। यस सर 445। और 21 में? यस सर। 21 में आपने गेट नहीं दिया? नो सर 21 में मैंने लिया था सर। 2020 के बाद मैंने जॉब सर्च करी थी, उसके बाद सर मेरा मतलब कहीं हुआ नहीं, तो सर मैं सोच रहा हूँ इस साल कुछ ज्वाइन कर लूँ। देखिए, अगर आपको एमटेक करना है और आपको किस में है, आपको कोर में जॉब करना है कि ऐसे नॉन कोर में, कोई भी जगह चलेगा? नहीं सर मुझे प्लेसमेंट से मतलब है बस सर। यार देखो ऐसा है ना, मैं आपको एक पहला ऑप्शन तो आपको दे रहा हूँ आपके स्कोर पे कि आप एमटेक रिसर्च अप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ पे सूरत कल में। ये पहला ऑप्शन है। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि अगर ये सबको बता रहा हूँ जिनका भी गेट स्कोर लो है, अगर कोई लोग सेल्फ स्पॉन्सर को ये कर सकते, मतलब सेल्फ स्पॉन्सर को फाइनेंस कर सकते। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है जिसका गेट स्कोर 414 था, 450 था, 425 था, 415 था। सो व्हाट उसने क्या किया, उसने IIT हैदराबाद में सेल्फ स्पॉन्सर अप्लाई किया, ठीक है, और उसको कॉल आ गई से इंटरव्यू दिया, अब उसने ले लिया, ठीक है। उसमें आपको फीस है ना 10 लाख फीस देनी पड़ेगी एमटेक के लिए, और 1 लाख से 1.5 लाख आपको हॉस्टल का वगैरह। सर कौन सी स्ट्रीम में अप्लाई करा हैदराबाद में? इसमें डिजाइन में अप्लाई किया बंदे ने। अब वो प्रिपेयर कर रहा है, नॉन कोर की तैयारी कर रहा है। अब इसमें क्या ना, जो पैकेज रहते हैं वहाँ पे, मतलब IIT हैदराबाद का पैकेज बहुत अच्छा है, आपको 20-22 लाख तक पैकेज मिलता है, कोर्स भी ज्यादा मिल सकता है। कंपनी आती है, ऐसा कभी होता है नहीं कि यहाँ पे नॉन कोर कंपनी है सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है, तो उसको वहाँ पर प्लेसमेंट नहीं लेगा। तो अगर आपकी फाइनेंस सपोर्ट कर सकते हो तो ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जिनका गेट स्कोर लो है, जिनको ईयर वेस्ट नहीं करना है, अगर आपको ऐसा है कि 1 साल बर्बाद नहीं करना, उसको भी ऐसी था 1 साल वेस्ट नहीं करना, मुझे इसी साल कोई एडमिशन चाहिए, उसने सेल्फ स्पॉन्सर के लिए अप्लाई कर दिया। ऐसा ही IIT जी कौन से कॉलेज में है सर? देखिए, आप IIT, अब जो लोग मैकेनिकल, यहाँ पे सब लोग मैकेनिकल से ही है, तो आप IIT हैदराबाद में आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना, सेल्फ स्पॉन्सर जिसको करना हो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अप्लाई कर देना। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करोगे तो पैकेज भी बहुत अच्छा रहेगा, आपको 20-22 लाख आराम से पैकेज मिलेगा। और अगर आप कोर में भी करोगे तो 12, 13, 14 लाख का पैकेज मिल जाता है। डिजाइन वगैरह में बहुत अच्छा पैकेज है, ठीक है। डिजाइन का बता रहा हूँ, थर्मल का 8-10 लाख है, तो बाकी मैन्युफैक्चरिंग का मेरे को आइडिया नहीं है अभी कितना चल रहा है पैकेज। लेकिन अगर जिसको अप्लाई करना है वो AI के लिए अप्लाई कर सकता है, बहुत अच्छा पैकेज है। डिजाइन के लिए कर सकता है। AI में मैकेनिकल वाले एलिजिबल है क्या? हाँ एलिजिबल है, सेल्फ स्पॉन्सर में एलिजिबल है। आप अप्लाई कर दोगे, आपको मिल जाएगा। आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू दे दिए सीधा आपको। वहाँ पे और भी ब्रांच है, जो सेल्फ स्पॉन्सर नहीं है उसमें एलिजिबल है क्या AI में मैकेनिकल वाले? नहीं, उसमें एलिजिबल नहीं है। उसमें गेट इलेक्ट्रिकल CS और EC वाले एलिजिबल है, सेल्फ स्पॉन्सर में मैकेनिकल वाले एलिजिबल है। सर और कोई भी ऑप्शन है सर? और IIT जोधपुर में भी सेल्फ स्पॉन्सर है, वहाँ पे भी देखिए, वहाँ पे तो 3 फेलोशिप चलता है, 3 प्रोग्राम चलता है। एक तो जनरल एमटेक चलता है, जहाँ पे आपको नॉर्मल फीस और स्टाइपेंड देनी पड़ेगी, तो स्टाइपेंड मिलेगा आपको। सेकंड है कि आपको विदाउट फेलोशिप, फीस तो सेम रहेगी, नॉर्मल फीस रहेगी जो एमटेक की देते हैं, आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तीसरा है सेल्फ स्पॉन्सर प्रोग्राम है, तो वहाँ पे आप CDA डेटा साइंस देख सकते हो, वहाँ पे डेटा साइंस देख लेना। जिनको सेल्फ स्पॉन्सर, वहाँ पे फीस बहुत कम है। IIT जोधपुर में 3 से 4 लाख रुपया फीस है, 2 साल का बता रहा। और डेटा साइंस या AI में आप अप्लाई कर लेना, अगर आपको जिसको करना है, मतलब इसी साल एडमिशन लेना है, कैसे भी करके लेना। गेट स्कोर भी कम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेगी। और IIT का आपको अटैक भी मिल जाएगा, ये एक चीज रहेगी। जिसको करना मैं उसके लिए बता रहा हूँ, मतलब सेल्फ स्पॉन्सर फीस है वो ज्यादा मिलता है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या CNI अप्लाई कर देना, चेन्नई मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी, पैकेज भी बहुत अच्छे हैं, अच्छी हर अपॉर्चुनिटी से। फिर उसके बाद तो बाकी दूसरी कॉलेज से बिट्स प्लानिंग वगैरह है। हेलो भाई, मेरा स्कोर 745 है गेट 2020 के अकॉर्डिंग, और मुझे नॉन कोर सेक्टर में ही जाना है, कोर नहीं चाहिए। तो फिर मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? मैंने सोचा है कि एक तो NIT सूरत का डेटा साइंस अप्लाई करूंगा, या फिर IIT में लेकर पैरेलली नॉन कोर के लिए प्रिपेयर करूंगा, तो कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा? देखिए, सूरत का एक अच्छा ऑप्शन है आपका। और NIT ट्रिची अप्लाई करना, IM के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट अप्लाई करना, आप वो भी अच्छा ऑप्शन है। NIT में भी अप्लाई कर देना आप आपके स्कोर पे, ठीक है। और उसके बाद IIT जो है ना, IIT वाराणसी DHU, अब एक नया कोर्स है, डिसीजन साइंस कोर्स है, लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। मतलब वो पहले कन्वर्ट कर दिया डिसीजन साइंस में, वो अप्लाई कर देना, वो अच्छा आपके लिए ऑप्शन रहेगा। आपके स्कोर के बेसिस पे आपको डेटा साइंस में उसका प्लेसमेंट सही है क्या? देखिए, वो तो स्टार्ट हुआ था, उससे पहले 10-12 लाख का पैकेज आता था, और जितनी भी डेटा साइंस कंपनी आपको वहाँ पे आपको मिल जाता था, पैकेज मिल जाता था, यहाँ आपको जॉब मिल जाती थी वहाँ पे।
ऑलमोस्ट 100% 90% प्लेसमेंट था जब वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नाम का ब्रांच था। अब वो डिपार्टमेंट कन्वर्ट कर दी, पूरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से कन्वर्ट कर दिए डिसीजन साइंस में, IIT भू वाराणसी। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर देना, ठीक है। वहाँ पे आपका कोर्स करिकुलम देख लेना, वहाँ पे आप अप्लाई कर देना, और उसके बाद आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। और NIT कौन सा बचा है अभी, NIT सूरत का बता दिया आपको। NIT ट्रिची कर लेना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये अच्छे खासे ब्रांच है। बाकी आप कोई भी इंडस्ट्री ब्रांच बोल रहे हो आप वो अप्लाई कर लेना। आप मोस्टली एनर्जी स्टडीज लेना, उसमें क्या बहुत से सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल से रहते हैं, तो मोस्टली अच्छे खासे वो मिल जाती है, नॉन कोर में जाने का एक अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। जो भी आप इंटर्नशिप में लोगे, वो कहने का मतलब ये कि वो आपके सब्जेक्ट के लिंक होना चाहिए, एकदम अलग से मत ले लेना कि आपका एमटेक ना हो। आपको यहाँ पे आपने सीख लिया, सारी कोडिंग सीख लिया, पाइथन लैंग्वेज सीख ली, सब कुछ सीख, आपको इंटर्नशिप भी मिल गई। मान लीजिए आपको इंटर्नशिप मिल गई, लेकिन आपको प्लेसमेंट नहीं होगा, दिक्कत होगा ना, CGPA कम होगा। CGPA कम क्यों होगा? क्योंकि आपने एमटेक आपसे नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा कोई ब्रांच कभी नहीं लेना चाहिए जिसको आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई पता नहीं, इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसीलिए ले रहे हो आप प्रिपेयर करने के लिए, वो एक नॉट अ गुड ऑप्शन रहेगा। इसलिए मोस्टली लोग मटेरियल साइंस लेते हैं, क्योंकि वो लिंक रहता है मैकेनिकल, सबसे जो लिंक सब्जेक्ट मैकेनिकल से, तो मटेरियल साइंस से फिर एनर्जी साइंस आता है। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको। और कब एनवायरमेंट साइंस तभी लेना, जो भी लोग लेंगे एनवायरमेंट साइंस, अगर आपको कोई ऐसे थोड़ा रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्ट है तब लेना, या प्योरली डेडिकेटेड हो नॉन कोर फिर तब लेना, क्योंकि मोस्टली एनवायरमेंट वही लोग लेते हैं जो सिविल से आते हैं। मैकेनिकल का कोई स्कोप नहीं है एनवायरमेंट से, मैकेनिकल वाले एनर्जी में लेना चाहिए। अच्छा, और अगर मैं IIT एनर्जी और NIT डेटा साइंस में से कौन सा प्रिफर करूँ? NIT डेटा साइंस ही रहेगा, ऑल टाइम डेटा साइंस सूरत का रहेगा प्लेसमेंट के लिए। आपको एनर्जी मिलेगा कहाँ पे? हाँ, अगर आपको IIT बॉम्बे का मिलता है एनर्जी, तो आप एनर्जी IIT बॉम्बे का लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई और NIT इसका मिलता है, IIT गुवाहाटी का आपको मिल रहा है एनर्जी स्टडीज, और IIT दिल्ली का अगर मिले तो? IIT दिल्ली का मिले और आपको NIT सूरत का मिले तो IIT दिल्ली प्रीफर करना, या 3 IIT है ना, बॉम्बे और ये दिल्ली, इसको प्रीफर करो, ये अच्छे कॉलेज है, यहाँ पे नॉन कोरी कंपनी बहुत आती है। अच्छा सर, एनर्जी के लिए बता रहा हूँ, वहाँ पे दूसरा ब्रांच भी वहाँ पे ओशन इंजीनियरिंग और सब मत लेना, वो सिर्फ एनर्जी की बताया उसके हिसाब से। हाँ, अगर नॉन कोर में जाना है तो एनर्जी बेस्ट है ना? एनर्जी बेस्ट है, एनर्जी मतलब ऐसा ब्रांच जो आपके सब्जेक्ट के लिंक हो। एनर्जी बेस्ट नहीं है, जो आपके सब्जेक्ट के लिंक हो एकदम, क्योंकि आपको प्रिपेयर भी करना है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आपके वो फुल टाइम प्रिपेयर करोगे डेटा साइंस का, आपको तो अपना सब्जेक्ट एमटेक भी निकालना है ना, और उसमें CGPA लाना है, मतलब 8 मिनिमम रहता है, कुछ कंपनी का 7.5 रहता है, वो तो क्लियर करोगे ना, तो कोई डिग्री वो नहीं मिलेगा आपको। CGPA का मतलब कंपनी बैठने नहीं दोगे सेंटर प्लेसमेंट, तो फिर क्या फायदा IIT में लेने का?